Hare Krishna. So today we'll be discussing the 16th and the 17th verses of the 6th chapter of Gita. We have been seeing till now in some verses how Krishna explains about the way one should sit physically, the way one should concentrate, looking at the tip of the nose, and one should completely abstain from any kind of sensual enjoyments so that one can become a very nice yogi. In spite of the dictations of senses and mind, one should regulate oneself with higher intelligence and should execute Krishna consciousness. Incidentally, Krishna knows that all of us, we have weaknesses, we have inherent desires with us. So unless there is something on a physical platform which will inspire us and keep us alive, things will not move forward. So Krishna gives very physical instruction today. In these two verses, Krishna talks about the way one should eat, the way one should sleep, the way one should work. Completely physical things. Krishna says in these two verses, 16th and the 17th verse, Natyashnatastu yogosti nachaikantamanashnatah nachati swapnashilasya Jagrato naiva charjuna yuktahara viharasya yukta cheshtasya karmasu yukta swapna avabodhasya yogo bhavati dukkha. Krishna says there is no possibility of one's becoming a yogi, O Arjuna, if one eats too much or eats too little, sleeps too much or does not sleep enough. He who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. So we see Krishna definitely does not negate the presence or the experience that this physical body must have on the limitations that are possessed by it in executing Krishna consciousness. भगवान कभी भी ये नहीं कहते कि हम पूरी तरह से शारीरिक ज़रूरतों से ऊपर उठ सकते हैं। भगवान जानते हैं ये शरीर उनकी तरफ आने के लिए सेवा करने का एक माध्यम है और इस माध्यम का जब तक ठीक से परवाह नहीं करेंगे, जब तक उसका ख्याल नहीं करेंगे तो माध्यम ठीक से कैसे कार्य करेगा? Exactly like if I have to travel and if my work entails a lot of travel, I must get my car or bike serviced regularly. मैं रोज कार और बाइक लेके घूमता रहूंगा लेकिन सर्विसिंग को कभी नहीं दूंगा तो गाड़ी तो एक दिन जवाब दे देनी है। इसी प्रकार से ये शरीर आत्मा के लिए बाह्य आवरण है, मान लिया निश्चित रूप से, लेकिन ये शरीर भी माध्यम है जिससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। अगर शरीर नहीं है तो हम भूत हैं, है कि नहीं? लोग फिर हमें आत्मा करके बुलाएंगे, नाम नहीं रहेगा, केवल आत्मा बन जाएंगे। तो आत्मा कैसे भक्ति करेगी? हम जानते हैं आत्मा दूसरे शरीरों के ऊपर हावी होने का प्रयास करती है। यस, उसी को हम बोलते हैं अरे भूत ने पकड़ लिया। तो भगवान जानते हैं कि प्रैक्टिकलिटी क्या है। You see, the beauty of our Vedic literatures is that they are never overtly expecting anything from a living entity that the living entity cannot deliver. भगवान कोई ऐसी चीज भगवत गीता में नहीं कहते जो हम नहीं कर सकते. Something which is not possible, Krishna has not told. And if Krishna has told, it is definitely possible, that's why it is there. जैसे हम 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन नहीं सिखाते, लेकिन हम पीएचडी के व्यक्ति को 1 + 1 = 10 मार्क्स के लिए नहीं पूछते. दोनों भी नहीं होता. 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को हम डबल इंटीग्रल कैलकुलस नहीं पूछते और पीएचडी के बच्चे को 1 + 1 = fill in the blanks करके उसको 10 मार्क्स के लिए नहीं पूछते. दोनों भी ठीक नहीं है. So Krishna, he has been systematically elevating Arjuna. And with this elevation, he brings to Arjuna's notice that you see, ultimately we have this body. और इस शरीर की लिमिटेशन के साथ हमें कार्य करना ही होगा,
शरीर को हमें माध्यम के रूप में, वाहन के रूप में उसका ख्याल रखना ही होगा। हम ऐसी अवस्था में, हम इतने प्रगत स्थिति में नहीं है कि हम शरीर की जरूरतों का ध्यान न रखें, फिर भी हरे कृष्णा करते रहें। सो द वे टू ट्रांसेंड बॉडी is through body. There is no other way to transcend body than using the body. अगर हमें ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जाना है, सीढ़ी चाहिए। सीढ़ी का उपयोग करके हम दूसरे मंजिल पर पहुंचते हैं। सीढ़ी का उपयोग नहीं करेंगे, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत तक जाने के लिए यह मनुष्य जीवन सीढ़ी है, इसका उपयोग करना ही पड़ेगा। तो अगर सीढ़ी से मुझे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाना है और मैं सीढ़ी की मरम्मत नहीं कर रहा, सीढ़ी का हर एक पैर ऐसा है कि कभी भी टूट सकता है, तो अल्टीमेटली टूटेगा मैं और गिरूंगा भी मैं, फ्रैक्चर मेरा ही होगा। सो कृष्णा वेरी ब्यूटिफुली सेज दैट वन मस्ट टेक केयर ऑफ बॉडी। व्हाट डज ही से? ही सेज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वंस बिकमिंग अ योगी इफ वन ईट्स टू लिटिल और ईट्स टू मच, स्लीप्स टू लिटिल और डज नॉट स्लीप इनफ। खाने और सोने के बारे में बात कर रहे हैं। महाभारत में खाना और सोना ये तो पाशवी प्रवृत्तियां बताई गई हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि हम पूरी तरह से अब तक कृष्णा कॉन्शियस नहीं हुए। सो कृष्णा गिव्स एवरीथिंग। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सब कुछ सिखाती है, वो अपना बेसिक नेसेसिटीज, हम जब बाथरूम जाएंगे तो अपनी विष्ठा को कैसे साफ करना है वो भी माँ सिखाएगी, कुल्ला कैसे करना है, ब्रश कैसे करना है वो भी माँ ही सिखाएगी। बेसिक से लेके एडवांस तक सब माँ सिखाएगी। उसी प्रकार भगवान सब कुछ दे रहे हैं हमें भगवद गीता में। सो कृष्णा सेज दैट अल्टीमेटली युक्त आहार विहारस्य, युक्त इज ट्रांसलेटेड एज कंट्रोल्ड। Ultimately, yoga is about control. So, controlled eating, controlled sleeping, controlled way of earning money, and controlled recreation. ये सारी चीजें जरूरत की हैं और ये सारी चीजें कंट्रोल्ड जरूरत की हैं, क्योंकि मुख्य उद्देश्य भगवान तक पहुंचना है, इनमें ही रुकना नहीं है। What is controlled eating? Srila Prabhupada explains very beautifully. Fill half the stomach with food, another 1/4 with water, and keep 1/4 for air to pass by. That is controlled eating. What is controlled sleeping? Sleep for 6 to 6.5 hours a day. 24 घंटे में से 6.5 घंटे controlled sleep. Controlled recreation, जितने हमारी मूलभूत जरूरतें हैं दिन की, वो करने के बाद में एक थोड़ा रिक्रिएशन चाहिए ही चाहिए। कंट्रोल्ड एंडेवर फॉर मेंटेनिंग बॉडी एंड लाइफ, दिन में 8-10 घंटे जो काम करना पड़ेगा, 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे 17 घंटे काम करेंगे तो हरे कृष्णा करने के लिए समय कहाँ है? तो इस तरह से हम जब कंट्रोल्ड जीवन जीते हैं, योग यानी कंट्रोल। अब तक हमने मन और इंद्रियों के कंट्रोल के बारे में देखा। अब भगवान यहाँ पर हमें इन 2 श्लोकों में बेसिक मूलभूत आवश्यकताओं के कंट्रोल के बारे में बताए, क्योंकि जब तक सारी चीजें कंट्रोल नहीं करेंगे इस भौतिक अस्तित्व को पार नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Krishna Krishna Krishna